Welcome dear students, we are giving reading of lesson number 16, A Wolf's Cub. We had read Hot Talk among the Sher Khan and Mother Wolf in previous video. In this video, we will give reading and then after we will do translate of every line in this video. So let us start. First of all, we are giving reading. So open your book, page number 110, and let us start. Father Wolf looked on amazed. Sher Khan might have faced Father Wolf, but he could not stand up against Mother Wolf. He knew that she could easily attack him from inside the narrow cave. So he backed out of the cave mouth growling, and when he got out he shouted, "Each dog barks in his own yard. We will see what your pack will say to raising of man cubs. The cub is mine, and he will come to my teeth in the end, O bush-tailed thieves." Father Wolf said to Mother gravely, "Sher Khan speaks this much truth. The cub must be shown to the pack. Will you still keep him?" "Keep him," Mother gasped. "He came naked by night, alone and very hungry. Yet he was not afraid. Look, he has pushed one of my babies to one side already. Keep him. Surely I will keep him. Lie still, little frog. Oh, you Mowgli. I will call you Mowgli the frog. The time will come when you will hunt Sher Khan as he has hunted you." Mowgli grew up with the cubs, though they were grown wolves almost before he was a child, and Father Wolf taught him the meaning of things in the jungle. Every rustle in the grass, every breath of the warm night air, every note of the owls above his head, and every splash of every little fish jumping in a pool. When he was not learning, he sat out in the sun and slept, and ate and went to sleep again. When he felt dirty or hot, he swam in the forest pools. He would fling himself through the branches boldly like an ape. He would go down the hillside into the cultivated lands by night and look curiously at the villagers in their huts. He did not trust men because they laid traps for the beasts. Mowgli led a wonderful life in the jungle. तो ये हम लोगों ने रीडिंग लगाया. अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसे ट्रांसलेट करते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था कि जब शेर खान पीछा कर रहा था मोगली का, तो उस वक्त मदर वल्फ में हॉट टॉक हो गया था शेर खान और मदर वल्फ में. उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे. फादर वल्फ लुक्ड ऑन अमेज्ड. फादर वल्फ अचंभित होकर के देखा. मीन्स मदर वल्फ जिस तरह से शेर खान से बात कर रही थी उसको सुन करके वो अचंभित रह गया. उसे बहुत ही हैरत होने लगी. शेर खान माइट हैव फेस्ड फादर वल्फ. शेर खान फादर वल्फ का तो मुकाबला कर सकता था, बट ही कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट मदर वल्फ. लेकिन मदर वल्फ के सामने वो खड़ा नहीं हो सका. He knew that she could easily attack him from inside the narrow cave. वो जानता है कि वो मदर वल्फ जो है वो अपने केव के अंदर से, जो एक सकरा नैरो केव है उसके अंदर से वो आसानी से उस पर हमला कर सकती है. सो ही बैक्ड आउट ऑफ द केव माउथ ग्रोलिंग. इसलिए वो अपने मुंह को बाहर ले आया, केव से, गुफा से बाहर ले आया गुर्राते हुए. एंड व्हेन ही गॉट आउट ही शाउटेड. और जब वो बाहर आया तो वो चिल्लाया. ईच डॉग बार्स इन हिज ओन यार्ड. हर कुत्ता अपने आंगन में भौंकता है. वी विल सी व्हाट योर पैक विल से टू रेजिंग ऑफ मैन कब्स. हम देखेंगे कि तुम्हारे पैक, तुम्हारे झुंड के लोग जो हैं, तुम्हारे भेड़िए के झुंड जो है, क्या एक बच्चे को, आदमी के बच्चे को रहने दे रहा है, उसका क्या
पड़ता होता है। द कब इज़ माइन, कब जो है ये कब जो है आदमी का जो बच्चा है ये मेरा है। एंड ही विल कम टू माई टीथ इन द एंड ऑफ ओ बुश ट्रेल थीव्स, वो कहता है शेर खान ये कब है ये मेरा है और एक दिन मेरे दांतों के अंदर आएगा, यानी कि आखिर में वो मेरा ही शिकार बनेगा। आगे बोलता है ओ बुश ट्रेल थीव्स, बुश ट्रेल मतलब मूर्ख चोर, ओ मूर्ख चोर। फादर वल्फ सेड द मदर ग्रेवली, शेर खान स्पीक्स दिस मच ट्रूथ। तब फादर वल्फ मदर वल्फ से कहता है कि सीरियस होकर के ग्रेवली वो कहता है कि शेर खान ने जो ये बात कहा है कि तुम देखते हैं कि तुम्हारा जो झुंड है इसे कबूल करता है कि नहीं। तो ये चीज़ जो है फादर वल्फ कहता है कि ये चीज़ जो शेर खान ने कहा है वो बहुत ही ज़्यादा सच्ची बात कहा है। द कब मस्ट बी शोन टू द पैक, विल यू स्टिल कीप हिम, ये कब जो है इसे हमें अपने झुंड के लोगों को ज़रूर दिखाना चाहिए, अपने पैक को दिखाना चाहिए। और उसके बाद पूछता है मदर वल्फ से क्या तुम अब भी इसको रखोगी? कीप हिम, मदर गास्प्ड, तो उसने कहा मदर वल्फ ने कहा इसे रखो, हाँफते हुए बोली। चूँकि उसे अभी हॉट टॉक हुआ था शेर खान से तो वो गुस्से में थी, तो इसलिए वो हाँफ रही थी, हाँफते हुए बोली कि इसे रखो। ही केम नेक्ड, वो नंगे बदन में आया था, बाई नाइट, रात में आया था, एलोन एंड वेरी हंग्री, अकेला था और बहुत ही भूखा था। येट ही वॉज नॉट एफ्रेड, फिर भी वो डरा हुआ नहीं था, यानी कि वो नंगा था, रात में अकेला, बहुत भूखा था और नंगा था, फिर भी वो डरा हुआ नहीं था। लुक ही हैज़ पुश्ड वन ऑफ माई बेबीज टू वन साइड ऑलरेडी, देखो उसने मेरे एक बच्चे को पहले से ही एक साइड में कर दिया है धक्का दे करके। कीप हिम, उसे रखो। श्योरली आई विल कीप हिम, ज़रूर मैं इसे रखूँगी। लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग ओ यू मोगली, फिर वो कहती है कि अभी तक तुम लेटे हुए हो और लेट हो, तुम्हें मैं फ्रॉग लिटिल फ्रॉग या मोगली करके पुकारूंगी। चूँकि वहाँ पे एक फ्रॉग था जिसका नाम मोगली था, तो वो मोगली के नाम से उसको कहा कि मैं पुकारूंगी। मदर वल्फ बोली कि मैं मोगली के नाम से पुकारूंगी, और वो मोगली क्या था? एक छोटा मेढक था। आई विल कॉल यू मोगली द फ्रॉग, मैं तुम्हें मोगली कहूँगी, मोगली मेढक कहूँगी। द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज़ हंटेड यू, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम शेर खान का शिकार करोगे जैसे उसने आज तुम्हारा शिकार किया। मोगली ग्रू अप विद द कब्स, आगे मोगली बढ़ता रहा उन कब के झुंड के साथ, कब वो बढ़ता रहा। दो दे वर ग्रोन वल्फ्स ऑलमोस्ट बिफोर ही वॉज ए चाइल्ड, जबकि वो कब जो होता है वो भेड़िया का जो बच्चा था वो तो जल्दी जवान हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन ये तो आदमी का बच्चा था, तो ये अभी तक तो बच्चा ही था जबकि वो सब जवान हो गया। एंड फादर वल्फ टॉट हिम द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल, तो मोगली को फादर वल्फ वहाँ जो जंगल के जो भी रूल्स है, जो कुछ है उसके बारे में समझाते थे, उसे सिखाया करते थे। एवरी रसल इन द ग्रास, घास की हर सरसराहट को, एवरी ब्रीथ ऑफ द वार्म नाइट एयर, हर गर्मी को, हर सांस को, हवा की जो खुशबू होती है, हवा में जिस तरीके की बू होती है उसको और उसके बाद एवरी नाइट नोट ऑफ द आउल एबव हिज हेड, और उसके ऊपर उड़ते हुए हर उल्लू के आवाज़ को, और एवरी स्प्लैश ऑफ एवरी लिटिल फिश जंपिंग इन ए पुल, और पुल के अंदर कूदते हुए हर मछली की छलांग को, ये सारी चीज़ को फादर वल्फ मोगली को समझाते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे। व्हेन ही वॉज नॉट लर्निंग, और जब ये सब मोगली नहीं सीखता होता था, ही सैट आउट इन द सन एंड स्लेप्ट, तो वो क्या करता था कि वो सन के अंदर, सन में मतलब सूरज की रोशनी में बाहर वो सो जाता, वो
बैठा होता या सो जाता। एंड एट एंड वेंट टू स्लीप अगेन, और फिर वो खाता और फिर वो सो जाता। व्हेन ही फेल्ट डर्टी और हॉट ही स्विम इन द फॉरेस्ट पूल, और जब उसे गर्मी लगती या वो अपने आप को गंदा महसूस करता तो जंगल के जो पूल थे, जंगल के जो तालाब नदी था उसके अंदर वो नहा लेता, तैरने लगता। ही वुड फ्लिंग हिमसेल्फ थ्रू द ब्रांचेस बोल्डली लाइक एन एप, वो जैसे लंगूर पेड़ के डाली से, पेड़ के ब्रांच से, पेड़ कोई लता से को पकड़ के वो झूलता रहता है, उसी तरह से ये भी पेड़ की डालियों को पकड़ के छलांग मारता रहता था, इधर से उधर कूद करके वो चढ़ जाता था। ही वुड गो डाउन द हिल साइड इन टू द कल्टिवेटेड लैंड बाई नाइट एंड लुक क्यूरियसली एट द विलेजर्स इन देयर हट्स, और कभी कभी वो हिल साइड में पहाड़ी का जो हिस्सा था वहाँ चला जाता था जहाँ कल्टीवेटेड जोते हुए खेत थे, खेती होती थी, वहाँ रात में चला जाता था और वहाँ गांव वाले को उनकी अपनी झोपड़ियों में सोते हुए देखता था, गांव वाले को अपनी झोपड़ियों में देखता था। ही डिड नॉट ट्रस्ट मैन बिकॉज दे लेट ट्रैप फॉर द बीस्ट, और वह लोगों का यकीन नहीं करता था, लोगों पर यकीन नहीं करता था क्योंकि जानवरों को वो लोग जानवरों का शिकार करने के लिए उसे लुभाते थे। मोगली लेड ए वंडरफुल लाइफ इन द जंगल, और मोगली एक बहुत ही अच्छा जीवन जंगल में गुजारा। ये रीडिंग था। हम लोगों ने लेसन नंबर 16 का 3 पार्ट में रीडिंग लगाया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख लें। शुक्रिया, थैंक यू।